The third lesson is demand analysis. Now today we'll talk about law of demand. The first one is when there is an increase in prices. Yeah, we can say whenever there is a rise in prices of particular goods, things or commodity. So when there is increase in prices, simultaneously the demand for the same will goes down, down and down. For example, चलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जाती है या जैसे जैसे चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड घटती 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 चली जाती है. आइए इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं. फॉर एग्जांपल द रेट्स या वी कैन से प्राइसेस ऑफ मोबाइल. Prices of mobile, let's we can say take example of Oppo, Vivo, Samsung या Lenovo. जैसे जैसे मोबाइल की प्राइसेस बढ़ती चली जाएगी या इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे वी कैन से एज देयर इज अ वी कैन से रेट ऑफ मोबाइल इज इंक्रीज्ड साइमल्टेनियसली देयर इज अ डिक्रीज. Let's take the example of mobile. When prices of mobile increased, whenever the prices of mobile increase, so there is a we can say demand for the same is decreased. Okay, law of demand means, as I told you, when there is an increase, yeah, there is a rise in prices of particular commodity, thing, goods and services. So simultaneously, the demand for the same will goes down, down and down. Now, let's take the example of mobile phones over here. Now, as the prices of mobile phone increased, so simultaneously, the demand for mobile phone is goes down, down, down. जैसे कि बच्चों हमारा जो डिमांड का जो लॉ होता है वो एक इन्वर्स रिलेशन होता है. अगर प्राइसेस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी और जैसे प्राइसेस घट गई वैसे डिमांड चीज़ों की बढ़नी शुरू हो जाती है. आइए एक नॉर्मल से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स का. जैसे कि अगर हमें पता चलता है कि मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस बढ़ चुकी है तो हम उसे ख़रीदना स्टॉप कर देते हैं या थोड़ा रोक लेते हैं. और जैसे हमें पता चलता है बच्चों कि वी कैन से प्राइसेस आर decreased, and once we'll come to know that the prices of mobile phone is goes down, down या decreased, so now the demand for the same will increased. इस टाइम पे क्या होता है बच्चों कि हमारी डिमांड इंक्रीज होती चली जाती है या बढ़ती चली जाती है. तो ये होता है मेरा एक वी कैन से लॉ ऑफ डिमांड कि जब जब चीज़ों के पैसे बढ़ेंगे या जब जब प्राइसेस बढ़ेगी तब तब डिमांड घटेगी एंड वाइस वर्सा जब डिमांड प्राइस घटेगी तब डिमांड ज़रूर बढ़ जाएगी. अगर प्राइसेस बढ़ गई तो डिमांड घटा दो, प्राइसेस घट गई तो डिमांड बढ़ा दो. ये होता है इन शॉर्ट मेरा वी कैन से लॉ ऑफ डिमांड. आइए देखते हैं बच्चों वी कैन से अब ये जो भी झमेला है ये किसने बताया हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल. Okay, now according to Professor Alfred Marshall, whenever the prices of particular goods or things or services increased, at the same time the demand for the same will decreased. According to Alfred Marshall क्या है कि जैसे जैसे prices we can say when there is a rise or increased in prices, the same way the demand for the same is decreased. Simultaneously उसकी demands क्या होगी बच्चों, घटती चली जाएगी. और अगर वी कैन से प्राइसेस घट गई तो डिमांड ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिवाली. नाउ जैसे कि दिवाली अब आने ही वाली है एंड वी ऑल आर अवेयर दैट दिवाली इज अ फेस्टिव सीजन. नाउ विल सी कि लेट मी रब इट. ओके, नाउ विल सी गाइस कि ड्यूरिंग दिवाली या ड्यूरिंग ईद या ड्यूरिंग एनी फेस्टिव सीजन व्हाट हैपन ना गाइस कि कंपनीज या वी कैन से मैन्युफैक्चरर्स आर लॉन्चिंग सम स्कीम्स, some offers, discount, free wala policies and all. Let's take example of online shopping. Okay guys, now let's take the example of online shopping. Now in last week what happened guys, big billion days means it's a sale is going on, yeah we can say a sale is going on online shopping, let it be Amazon, Flipkart, Snapdeal, Craftsvilla, Shopcluse and all. So
big billion sales are going on now. Over there, we can say manufacturers, yeah, we can say distributors or dealers, they are launching some schemes, some offers, yeah, discount, yeah, free wale funding they are providing, yeah, they are giving to their customers. Now, as they, we can say, as they are providing some schemes, some offers, some discounts, and some free policies. So now it is known as big billion days. बिग बिलियन डेज की सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट्स, बहुत सारी फैसिलिटीज़ एंड ऑल. नाउ when we can say dealer, distributor or manufacturers are providing, yeah, giving or launching these types of, we can say, offers and schemes in markets, yeah, discount, yeah, free fund days in market. So here they are decreasing, yeah, there is a fall in prices of particular commodity. That's why the demand for the same will absolutely या directly increased. इन सारी स्कीम्स के द्वारा क्या करते हैं बच्चों कि हमारे मैन्युफैक्चरर लीजिए, डीलर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए, चीज़ों की प्राइसेस को कम कर देते हैं. और जैसे चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाती है, सारे के सारे लोग उन चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करते हैं. मीन्स as there is decrease in prices, simultaneously demand for the same will rise. Okay, now this, the best example of the same is, we can say, big billion days. Now let me give you one more example of the same. Key, as the prices of particular goods and services increased or rise, so there is a, we can say, great fall in demand. For example, guys, for example, we can say as Diwali is going on, या we can say दिवाली अभी आने ही वाली है. दिवाली के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की डिमांड घट जाएगी. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ईद. Okay, now according to tradition, yeah, according to custom, we can say sheer khurma, yeah, we can say in Diwali farar. Okay, to prepare sheer khurma in Eid and to prepare farar in Diwali, it is a custom, yeah, we can say it is a tradition, guys. Now if the rates of, we can say, the prices of farar will increased, yeah, we can say is, we can say the prices of farar is raised, so what happened, the demand for the same will goes down, down and down. Now guys, we can say in the month of Eid, if the prices of sheer kurma is increased, if the prices of sheer kurma is increased in the month of, we can say, in the period of Eid, then what happened, guys, as there is an increase in price, तो the demand for the same will goes down, down and down. अगर हम लोग ईद और दिवाली की एग्जांपल लेते हैं तो फरार की अगर, वी कैन से, जो भी उसमें बनता है, चकली, चूड़ा एंड ऑल, उन चीज़ों की प्राइसेस अगर बढ़ा दे तो लोग उसको खरीदना बंद नहीं कर देंगे, बट उसकी डिमांड ज़रूर कम हो जाएगी क्योंकि उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं. तो बट ऑफकोर्स उसकी डिमांड ज़रूर घट जाएगी. और अगर हम लोग ईद की एग्जाम्पल लें तो ईद में शीर खुरमा बनाना या दिवाली में फराल बनाना एक प्रथा है. उसके अनुसार क्या होगा कि अगर उस पर्टिकुलर चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाती है तो बट ऑफकोर्स उसकी डिमांड में थोड़ी सी कमी आ जाएगी. ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा पूरा, वी कैन से, लॉ ऑफ डिमांड, जो कि हमारे ऑल्फ्रेड मार्शल जी ने बताया हुआ है. आइए देखते हैं बच्चों इसी चीज़ के लिए कि इसके कुछ एजम्पशंस हैं. Okay guys, now let's have a look toward, we can say, some assumptions of law of demand. The first one is constant income. The same law is been applicable when the income of a consumer is constant, means there is no change in the income of consumers. एजम्पशंस में क्या आता है बच्चों कि अगर ये चीज़ें एज इट इज़ रही तभी आप इस पर्टिकुलर लॉ को अप्लाई कर सकते हो. उन्हें हम लोग बोल देंगे एजम्पशंस. मीन्स अदर थिंग्स आर एज इट इज़ या सेम और कांस्टेंट, तभी हम उस चीज़ के अंदर चेंजेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज कांस्टेंट, then and then only the law will, we can say, apply on the same. अगर एक कस्टमर की इनकम जितनी भी थी अभी भी, पहले जितनी थी अभी भी उतनी है, तभी ये रूल अप्लाई होगा उसके ऊपर कि डिमांड जब बढ़ेगी, वी कैन से, जब प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी. अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी ही बढ़ गई, पहले थी 10,000 अभी है 1 लाख, तो अगर बंदे की सैलरी बढ़ जाती है, पहले 10,000 थी अब 1 लाख है, तो वी कैन से कितनी भी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाए
उस बंदे को कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए कांस्टेंट इनकम होनी चाहिए। अगला वाला देख लीजिए बच्चों कि वी कैन से नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ओके, नो चेंज। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन में भी क्या आएगा बच्चों कि जो भी मेरी पॉपुलेशन की साइज है उसके भी अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। जितनी पॉपुलेशन पहले थी उतनी ही अभी होनी चाहिए, तभी मेरा ये लॉ वाला जो फंडा है वहाँ पे अप्लाई होगा कि जब जब प्राइसेस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, या जब जब प्राइसेस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। अगला हो जाता है बच्चों मेरा थर्ड एजम्पशन इज वी कैन से प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। Substitute goods, we can say prices constant. Okay, prices of substitute goods, for example टी का substitute बन जाता है मेरा कॉफ़ी, coffee is a substitute for tea, so we can say the prices of substitute goods should remain as it is, means there is no change in the prices of, we can say the prices of tea and coffee. टी और कॉफ़ी जो कि एक दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट्स है या ऑल्टरनेट्स है, इनकी भी प्राइसेस चेंज नहीं हो। या क्या होगा कि अगर इफ देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ टी तो पीपल्स विल स्विच टुवर्ड कॉफ़ी, या इफ द रेट्स ऑफ कॉफ़ी आर ग्रेटर दैन द रेट्स ऑफ टी तो द पर्सन्स विल स्विच टुवर्ड टी। अगर किसी एक चीज़ की प्राइसेस कम होगी दोनों में से तो लोग क्या करेंगे, अगर टी की प्राइसेस बढ़ गई तो कॉफ़ी खरीदना स्टार्ट करेंगे, कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ गई तो टी खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो ये लॉ कब अप्लाई होगा बच्चों, जब सब्सटीट्यूट गुड्स की भी प्राइसेस एज इट इज होगी, या वी कैन से उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला, वी कैन से प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी प्राइसेस क्या होनी चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। चलिए, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी प्राइसेस कांस्टेंट होनी चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस भी अगर कांस्टेंट होंगी तभी हमारी डिमांड पे अफेक्ट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है बच्चों, एक ऐसी चीज़ जैसे कि पेट्रोल और कार, पेन और इंक, इन चीज़ों को हम लोग बोल देंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से कार की डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, या इंक महंगी होने की वजह से मेरे पेन की डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तब भी मेरा लॉ ऑफ वी कैन से डिमांड का जो रूल है वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। द नेक्स्ट वन इज गाइस फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स विजन टुवर्ड्स फ्यूचर, मीन्स नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस। नाउ फ्यूचर के अंदर प्राइसेस बढ़ेंगी या घटेंगी उस चीज़ का भी हमें जानकारी है, उसका भी अनुमान नहीं होना चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को फोरकास्ट कर सकते हैं, या तभी मेरा लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे अप्लाई होगा। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि फ्यूचर में चीज़ों की प्राइसेस डिक्रीज होने वाली है या कम होने वाली है तो कोई भी उन चीज़ों को अभी नहीं लेगा, थोड़ा रुक के थोड़े दिनों के बाद ही परचेज कर लेंगे। दैट्स वाई नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइसेस की इन लोगों को जानकारी नहीं होनी चाहिए, तभी ये वाला लॉ वहाँ पे भी अप्लाई होगा। अगला हो जाता है बच्चों मेरा नो चेंज इन हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और वी कैन से फैशन। Okay, the same law, yeah, we can say the same law of demand is applied when there is no change in habits, taste, preference and fashion. ये सेम लॉ अप्लाई तब होगा बच्चों जब ना हैबिट्स बदलेगी लोगों की आदतें, ना लोगों का टेस्ट बदलेगा, ना उनके प्रेफरेंसेस बदलेंगे, ना पर्टिकुलर फैशन में कोई चेंज होगा, तभी मेरा लॉ ऑफ डिमांड उस पर्टिकुलर चीज़ पे वी कैन से अप्लाई होगा। और लास्ट हो जाता है बच्चों मेरा नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। ओके, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज मतलब कि क्या, जो टैक्सेशन की भी जो भी पॉलिसी है बच्चों उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर वी कैन से एजम्पशंस क्या हो जाते हैं, अगर ये इतनी सारी चीज़ें नहीं हुई तभी मेरा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है या इसके ऊपर वो लागू हो सकता है। आइए देख लेते हैं कि व्हाट आर द एजम्पशंस। मीन्स कांस्टेंट इनकम, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, the prices of substitute goods remain as it is or constant, the prices of complementary goods remain constant or as it is, we can say
no expectation about future prices, yeah, we can say changes in future prices, yeah, no change in habits, tastes and preferences of consumers, या नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज. एजम्पशंस हो जाते हैं बच्चों कि मेरे कंज्यूमर की इनकम ना बदले, साइज ऑफ पॉपुलेशन में भी बदल नहीं होना चाहिए, सब्सटीट्यूट गुड्स की भी प्राइजेस बदलनी नहीं चाहिए, एज इट इज़ रहनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी प्राइजेस बदलनी नहीं चाहिए. जो भी मेरा वी कैन से फ्यूचर था उसके बारे में भी मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में इतनी प्राइजेस बढ़ जाएगी, इतनी घट जाएगी एंड ऑल. नेक्स्ट, मेरे हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस और फैशन उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज़ में भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. तभी यहाँ पर मेरा वी कैन से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा ना. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ पे वो अप्लाई होगा. तो लेट्स सी गाइस कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. व्हेन प्राइसेस इंक्रीज्ड, डिमांड डिक्रीज्ड. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? व्हेन देयर इज अ राइज और इंक्रीज इन प्राइसेस of particular goods, so there is a decrease in demand, and vice versa means as the prices are decreasing, the demand for the same will increasing. जब जब पैसा बढ़ा दोगे डिमांड घट जाएगी, जब जब पैसा घटा दोगे डिमांड बढ़ जाएगी. ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.